لاہور میں کورونا آؤٹ آف کنٹرول، شہر کے 81 ہاٹ سپاٹ علاقے رات 12 بجے سیل کرنے کا فیصلہ۔ ڈی ایچ اے، گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، کینٹ، کیولری گراؤنڈ، کینال ویو شامل۔ مصطفیٰ ٹاؤن، وابڈا ٹاؤن، سبزہ زار، اقبال ٹاؤن، جوہر ٹاؤن کے مختلف بلاک بند کیے جائیں گے۔ جی او آر، ہربنسپورہ، شاہدرہ، بادامی باغ، شاد باغ، مزنگ، ساندہ، اندرون شہر کے کئی علاقے شامل۔ 2 ہفتے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ لاہور میں ہاٹ سپاٹ علاقوں میں ٹائیگر فورس ایس او پیز پر عمل کرائے گی۔ سیل کیے جانے والے علاقوں میں 4 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوں گے۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کہتی ہیں شہریوں نے ایس او پیز پر عمل نہ کیا تو لاہور کے باقی علاقے بھی بند کر دیے جائیں گے۔ ادھر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک کے 20 شہر کورونا کے پھیلاؤ کے حوالے سے خطرناک ترین ہیں۔ سندھ میں بھی کورونا کیسز میں اضافے پر مخصوص علاقوں میں لاک ڈاؤن پر غور۔ کراچی کے 6 اضلاع میں 15 سے زائد ہاٹ سپاٹ ایریاز کو نشاندہی کر لی گئی۔ سکھر، گھوٹکی، خیرپور اور دیگر اضلاع میں بھی ہاٹ سپاٹس کا پتہ چلا لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی کابینہ اراکین کے ساتھ مشاورت۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے لاک ڈاؤن سے متعلق کوئی بھی فیصلہ وفاق کی مشاورت سے کریں گے۔ پاکستان میں کورونا کے مزید 97 مریض دم توڑ گئے۔ مجموعی اموات 2729 ہو گئیں۔ 24 گھنٹے میں 5248 نئے کیسز رپورٹ۔ متاثرین 1,44,478 تک جا پہنچے۔ سندھ میں متاثرین 55,000 اور پنجاب میں 54,000 سے زائد ہو گئے۔ صوبائی وزیر شہلا رضا اور ایم پی اے شاہ فیصل کے کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گئے۔ مزید 81 ہیلتھ کیئر ورکرز متاثر، 1 جان کی بازی بھی ہار گیا۔ برطانیہ میں 83 روز بعد لاک ڈاؤن ختم۔ مختلف شہروں میں لوگوں کا ہجوم امڈ آیا۔ عبادت گاہیں، پارکس اور غیر ضروری اشیاء کی دکانیں بھی کھل گئیں۔ دکاندار اور عوام خوش، کئی جگہ پر ایس او پیز نظر انداز۔ ایسٹ لندن میں بھی لاک ڈاؤن ختم۔ پہلے روز دکانوں پر لوگوں کی قطاریں، تمام بڑے سٹورز نے سیل لگائی۔ شہر کھلنے پر لوگوں کا خوشی کا اظہار۔ وکلاء تنظیم انٹرنیشنل لائر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی لندن میں جی سی یونیورسٹی لاہور کے وائس چانسلر ڈاکٹر اصغر زیدی سے ملاقات۔ مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان سے انٹرنشپ پر آنے والوں کے لیے ہر ممکن تعاون کا اعلان۔ سعودی عرب میں پی آئی اے کا دفتر بند ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات۔ آن لائن ٹکٹس ملنا بھی محال ہو گیا۔ سینکڑوں پاکستانی خوار ہو کر رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ رافع عوان۔ ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لاہوریوں کی لاپرواہی نے بڑی مصیبت کو دعوت دے دی۔ جی ہاں، لاہور میں کورونا وائرس قابو سے باہر ہونے لگا۔ کیسز میں بے پناہ اضافے کے پیش نظر پنجاب حکومت نے شہر لاہور کے کئی علاقے کل رات 12 بجے سے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابتدائی طور پر لاہور کے 9 ٹاؤنز میں مجموعی طور پر 81 علاقوں کو سیل کیا جائے گا۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے وارننگ دی ہے کہ اگر شہریوں نے ایس او پیز پر عمل نہ کیا تو باقی علاقے بھی بند کر دیے جائیں گے۔ لاہور میں کورونا آؤٹ آف کنٹرول، کئی علاقے رات 12 بجے سے بند کرنے کا اعلان۔ ہربنسپورہ، شاہدرہ، شاد باغ، گلبرگ، نشتر ٹاؤن، اقبال ٹاؤن کے علاقے بند کیے جائیں گے۔ کینٹ، جوہر ٹاؤن، سبزہ زار، مزنگ، ورلڈ سٹی کے متعدد علاقوں میں بھی 2 ہفتے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ کچھ علاقے شاہدرہ کے ہیں، ہماری ورلڈ سٹی کے کچھ علاقے ہیں، مزنگ، شاد باغ، ہربنسپورہ، گلبرگ کے کچھ علاقے ہیں، کچھ علاقے کینٹ کے ہیں، نشتر ٹاؤن تقریباً سارا ہی، علامہ اقبال ٹاؤن میں
कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि लाहौर कोरोना वायरस का गढ़ बनता जा रहा है। शहरियों ने SOPs पर अमल दरामद ना किया तो बाकी इलाकों को भी बंद कर दिया जाएगा। बाकी इलाके जिनमें SOPs नहीं इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं, उनको अब इस बात पे कान हो जाने चाहिए कि अगर आपके SOPs फॉलो न करने की वजह से आपके इलाके के अंदर भी इंसिडेंट्स फैल गया और मजीद, क्योंकि हर रोज़ हमारे पास केसेस आते हैं, हर रोज़ उसकी एनालिसिस होती है, तो ये ना हो कि बाकी इलाके भी बंद करने पड़े। ज़राई हुकूमत के ज़राए के मुताबिक लाहौर के 90 इलाके कोरोना का मरकज हैं। बाज़ इलाकों के चंद गलियों में सैकड़ों केस पाए गए। सबसे बड़ा मरकज सिटी डिवीजन है जिसके 30 इलाके ज्यादा मुतासिर हैं। ज्यादा मुतासिर इलाकों में शाहदरा से शफीकाबाद, मकबरा जहांगीर के गिरदोनवाह की गलियां, अंदरून शहर के मुतअद्दिद इलाके, शादबाग, सामनाबाद, मॉल रोड के मुतअद्दिद इलाके, मजंग, मुल्तान रोड के इलाके भी शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को तलब कर लिया। तमाम AC अपने इलाकों में कोरोना के मरीजों की तफसीलात फराहम करेंगे। जिन इलाकों में कोरोना मरीज होंगे वहां सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। कोरोना वायरस के बायस सील किए गए हॉटस्पॉट्स में सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन को दफातर जाने की इजाजत होगी, तहम दीगर इलाकों का कोई शख्स अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा, ना ही कोई रिहायशी बिला वजह बाहर जा सकेगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके सील करने का तरीकाकार क्या होगा, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। लाहौर में कोरोना से ज्यादा मुतासर होने वाले इलाके सील किए जा रहे हैं। इन इलाकों में कुछ कवायद और ज़वाबित बनाकर लॉकडाउन किया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन को दफातर जाने की इजाजत होगी, ताहम आते जाते वक्त सख्त स्क्रूटनी की जाएगी। मुतासरा इलाकों से बिला वजह किसी शख्स को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, जबकि न ही कोई दूसरे इलाके का रिहायशी इन इलाकों में दाखिल हो सकेगा। सील करदा इलाकों में हर शख्स के कोरोना टेस्ट 3 मरतबा लिए जाएंगे। सील किए गए इलाकों के मेडिकल स्टोर्स और अशियाए खुरनोश की दुकानें खुली रहेंगी और इन इलाकों में सिर्फ मुतल्लिका अहलकारों और अशिया सप्लाई करने वालों को ही जाने की इजाजत दी जाएगी। घर के एक फर्द को खरीदारी की इजाजत होगी। नाज़रीन, लाहौर के 9 टाउन्स में मजमूई तौर पर 81 इलाकों को सील किया जाएगा। इन इलाकों को लॉकडाउन करके अंदर और बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। लाहौर का कौन सा इलाका, कौन सा मोहल्ला और कौन सी गली बंद होने जा रही है, इस रिपोर्ट में जानिए। लाहौर में कौन कौन से इलाकों को सील किया जाएगा, फहरिस्त 92 न्यूज ने हासिल कर ली। शहर के 9 टाउन्स के 81 इलाकों को सील किया जा रहा है, जहां बिला वजह आने जाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। रावी टाउन में बेगम कोट, बारादरी रोड, रावी क्लिफ्टन शाहदरा, हनीफ पार्क बादामी बाग, मलिक पार्क बादामी बाग, सैद मिठा बाजार सील होगा। दाता टाउन में सांदा, गवाल मंडी, राजगढ़, चमन बाग, पीर मकी, जेल रोड, GOR, कला गुजर सिंह शामिल हैं। समनाबाद टाउन के इलाके सतलुज, जहांजेब, रावी, कश्मीर, नरगिस, हुमा और रचना ब्लॉक सील किए जाएंगे। रजा कामरान, उमर, करीम, मेहरान, नश्तर और सिकंदर ब्लॉक्स को सील किया जाएगा। कैंट में DH फेज 1, 2, 3, 4, 5, 8, सदर, सर्वर रोड, कैवलरी ग्राउंड, ऑफिसर्स कॉलोनी सील होंगे। अस्करी 8, 9, 10, अलाउद्दीन रोड सील होंगे। वाघा टाउन में मनावा, मोहल्ला शाहनूर, दरोगे वाला, बिस्मिल्लाह स्कीम सील होंगे। इकबाल टाउन में जोहर टाउन, A ब्लॉक, B1, E ब्लॉक, F2, G ब्लॉक, H, J और R ब्लॉक्स, मुस्तफा टाउन, केनाल व्यू सोसाइटी, EME सोसाइटी, वाबडा टाउन, PCSIR फेज 2 सील होंगे। बहरिया टाउन के जास्मीन, गुलबहार और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक सील होंगे। गुलबर्ग टाउन में गार्डन टाउन, अहमद ब्लॉक, टीपू ब्लॉक, बाबर ब्लॉक, औरंगजेब ब्लॉक, तारिक ब्लॉक, शेरशाह ब्लॉक सील होंगे। गुलबर्ग 1 और 3 में कसूरी रोड, MM आलम रोड, गुरुमांगट रोड, A1 ब्लॉक, B1 ब्लॉक, कबूतरपुरा, नबीपुरा शामिल हैं। जफर अली रोड, ज़ुहूर इलाही रोड, सदर इकबाल रोड, मेन मार्केट, सेंट मैरी कॉलोनी सील होंगे। शालामार टाउन में गुजरपुरा, रहमतपुरा, बेगमपुरा, चामीरा, बिलाल पार्क, मक्कापुरा, कोट ख्वाजा सईद, शादबाग, वसनपुरा, फैजबाग, क्राउन पार्क, मादू लाल हुसैन, मोहम्मदन कॉलोनी, बागबानपुरा, अंगूरी बाग और मुजाहिद बाग सील होंगे। अजीज भट्टी टाउन का इलाका केनाल बैंक हाउसिंग स्कीम, नबीपुरा, नुसरत कॉलोनी, मदीना स्ट्रीट नंबर 35, गुलिस्तान कॉलोनी, नूर कॉलोनी गाजियाबाद, शाह आलम कॉलोनी, नाजिमाबाद, ताजपुरा के इलाके सील होंगे।
اور صرف لاہور ہی نہیں، ملک کے دیگر بڑے شہروں میں بھی کرونا وائرس نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ پاکستان کے 20 شہر کورونا کے پھیلاؤ کے لیے ہاٹ سپاٹ، کلسٹرز اور خطرناک ترین قرار دے دیے گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کورونا وائرس کے حوالے سے ملک کے 20 شہر انتہائی خطرناک قرار دے دیے گئے۔ ان شہروں میں پابندیاں لگانے کی سفارش بھی کر دی گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا ٹریس، ٹیسٹ اور قرنطینہ کی حکمت کا بہترین استعمال، صوبوں کے ساتھ 20 شہروں سے متعلق امور کا تبادلہ خیال کیا گیا، جس کے بعد تفصیلات تیار کی گئیں۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد اور ملتان میں کورونا اپنے پنجے گاڑ چکا۔ گجرانوالہ، سوات، حیدرآباد، سکھر، سیالکوٹ، گجرات، گھوٹکی میں پھیل رہا ہے۔ لاڑکانہ، خیرپور، ڈی جی خان، مالاکنڈ، مردان پر بھی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اسلام آباد میں سیکٹر G92-3 میں 300 سے زائد کورونا کیسز سامنے آئے، جس پر ان سیکٹرز اور کراچی کمپنی کو سیل کر دیا گیا۔ نئے ہاٹ سپاٹس میں G6، G7، غوری ٹاؤن، I8، I10 شامل ہیں۔ کمانڈ سینٹر کے مطابق ٹریس، ٹیسٹ، قرنطینہ کا مقصد پھیلاؤ روکنا، کلسٹرز، ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی کرنا ہے۔ حکمت عملی سے 13 ہدف لاک ڈاؤنز اور وسائل متحرک کیے جا سکتے ہیں۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں کورونا کیسز میں اضافہ ہونے پر صوبائی حکومت نے مخصوص علاقوں میں لاک ڈاؤن پر غور شروع کر دیا۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے لاک ڈاؤن سے متعلق کوئی بھی فیصلہ وفاق کی مشاورت سے ہوگا۔ سندھ میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے بعد صوبائی حکومت نے بھی سمارٹ لاک ڈاؤن پر غور شروع کر دیا۔ کراچی کے 6 اضلاع میں 15 سے زائد ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی ہو گئی۔ سکھر، گھوٹکی، خیرپور سمیت دیگر اضلاع میں بھی ہاٹ سپاٹس ایریاز موجود ہیں جہاں سے کورونا کیسز نکل رہے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت کا کہنا تھا وفاقی حکومت کے فیصلوں سے عوام کنفیوژن کا شکار ہیں۔ وفاقی حکومت انتظامی معاملات میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔ کورونا سے صحت مند افراد پلازما عطیہ کر کے دوسروں کی جان بچائیں۔ عوام کنفیوزڈ اسی لیے ہے کہ کبھی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن، کبھی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے سلیکٹڈ لاک ڈاؤن۔ میں سمجھتا ہوں عوام کو کنفیوژن کا شکار اس بیانیے نے کیا ہے۔ میں سندھ حکومت کی جانب سے پرزور بھرپور اپیل کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وبا، اس مرض سے صحت یاب ہوئے ہیں وہ صدقہ جاریہ سمجھ کے، انسانی خدمت سمجھ کے اپنا پلازما متعلقہ اداروں کو دیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے حوالے سے کابینہ اراکین کے ساتھ مشاورت کی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے لاک ڈاؤن سے متعلق کوئی بھی فیصلہ وفاقی حکومت کی مشاورت سے ہوگا۔ اور کورونا SOPs پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے، دیہاتیوں نے شہریوں کو بتا دیا۔ شہروں کی نسبت دیہات میں حکومتی ہدایات پر عمل درآمد کی شرح زیادہ رہی۔ گیلپ سروے کے مطابق مئی میں 55% پاکستانیوں نے حکومتی SOPs پر عمل بالکل بھی نہیں کیا۔ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد میں دیہاتی شہریوں سے آگے نکل گئے۔ شہروں کی نسبت دیہات میں ہدایات پر عمل کی شرح زیادہ رہی۔ گیلپ سروے کے مطابق دیہات میں 48% اور شہروں میں 40% لوگوں نے سماجی میل جول بالکل نہیں رکھا۔ سروے کے دوران معلوم ہوا کہ مئی میں 55% پاکستانیوں نے حکومتی SOPs پر عمل نہیں کیا اور اپنے اہل خانہ کے علاوہ دیگر لوگوں سے سماجی میل جول برقرار رکھا۔ 24% شہری گھر والوں کے علاوہ 10 سے زائد افراد سے ملے۔ گیلپ سروے کے مطابق 14% لوگوں نے 1 سے 5 افراد سے ملاقاتیں کی، 15% آبادی نے 6 سے 10 لوگوں سے ملاقاتیں کی اور 10% پاکستانیوں نے 11 سے 20 افراد سے ملاقاتیں کی۔ 14% پاکستانیوں نے 20 سے زیادہ افراد سے سماجی میل جول رکھا۔ پاکستانی حکومت، محکمہ صحت اور عالمی ادارہ صحت نے کورونا کی وجہ سے سماجی میل جول نہ رکھنے کی تاکید کر رکھی ہے۔ تاہم شہریوں کی بجائے دیہات میں کورونا سے بچنے کے لیے ہدایات پر زیادہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ بلیٹن جاری ہے، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ برطانیہ میں 83 روز بعد لاک ڈاؤن ختم ہوا تو شہر میں ہجوم امڑ آیا۔ غیر ضروری اشیاء کی شاپنگ کی اجازت ملی تو مارکیٹ میں قطاریں لگ گئیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے اور عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازم قرار دیا گیا۔ کئی جگہ حفاظتی تدابیر کو نظر انداز بھی کیا گیا۔ تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین عوام کی رپورٹ میں۔
दुनिया में तकरीबन 3 माह के लॉकडाउन के बाद मसाजिद, पार्क, चिड़ियाघर, नीलाम घर, स्टूडियोज और गैर जरूरी शॉपिंग की दुकानें खुल गईं। लंदन के कई इलाकों में दुकानों के बाहर लंबी कतारें नजर आईं, जिनमें समाजी दूरी के असूलों का ख्याल नहीं रखा गया। कई दुकानों ने 50% तक सेल की ऑफर लगाई, जबकि एक वक्त में महदूद लोगों को दुकान के अंदर आने की इजाजत दी गई, जबकि बेशतर दुकानों ने कैश के बजाय कार्ड्स के इस्तेमाल को तरजीह दी। डिपार्टमेंट स्टोर्स, मलबूसात और किताबों की दुकानें 23 मार्च से बंद थीं, ताहम पीर का दिन इन तमाम दुकानों के लिए कारोबारी लिहाज से काफी अच्छी खबरें लेकर आया। एक रिटेलर केट हार्ड कैसल का कहना था कि लोगों का जोशो खरोश दीदनी रहा और आज एक शानदार दिन था। I think today is such a pivotal day as we see the non-essential stores reopen in England. I think there will be excitement. I think we will see visitors because a lot of people are still furloughed. A lot of people have been cooped up and ready to spend. But we've got to look reality down the lens and look what the long term is going to be like. We know there's economic hardship ahead. We know that actually a lot of people do dip away from non-essential purchases when times get tough. लोगों ने भी कई रोज बाद घरों से निकलने पर सुख का सांस लिया और लॉकडाउन खोलने के हुकूमती फैसले को सराहा। आज हमने 3 महीने के बाद खोला है इसको, और ब्रॉडवे भी जो है, साउथ हॉल ब्रॉडवे, इस वक्त इसमें थोड़ी बहुत चहक है, लेकिन मेरे ख्याल में 10 से 15% लोग अभी बाहर आए हैं। लग तो रहा है कि जिस तरीके से कस्टमर निकल रहे हैं ना और आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह से जो है ना लग रहा है कि काम पिक तो करेगा, क्योंकि जो छोटी ईद है वो तो लॉकडाउन में निकल गई। जी बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं इधर ही लोकल ही रहता हूँ, लेकिन आज 3 महीने के बाद शॉप्स ओपन देखी हैं, 100 साल की दोबारा रौनक दोबारा बहाल हो गई है। 10% जो कस्टमर्स वो बाहर निकला है, बाकी 90% कस्टमर अभी भी घर पे बैठा हुआ है डर के मारे। तो काम अभी नहीं होने वाला, इस साल तो भूल जाएं कि काम होगा। 3 महीने बाद ये यूके में अभी शॉपिंग मॉल सारे खुले हैं, लेकिन इतना कोई माहौल नहीं है। अभी इसको कम से कम 6 महीने लगेंगे। हुकूमत ने तवक्को जाहिर की है कि दुकानदार हजरात हिफाजती तदाबीर का ख्याल रखेंगे और अवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रश वाली जगहों पर मास्क पहनेंगे। दूसरी जानिब बरतानिया की वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में मजीद 36 लोग कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद हलाकतों की कुल तादाद 41,698 हो चुकी। इंग्लैंड में लॉकडाउन में नरमी का पहला रोज़, एहसास ऐसा कि जैसे ज़िंदगी लौट आई हो। बाज़ारों में औरतें, मर्द, बच्चे सब अपनी ज़रूरत की अशिया खरीदते नज़र आए। विंडो शॉपिंग करने वालों को भी कभी नहीं थी। लंदन का इलाका साउथ हॉल, उसकी रौनकें जो है वो लौटती नज़र आ रही हैं। लोगों का कहना था कि हुकूमत अगर मज़ीद नरमी करेगी तो ज़िंदगी दोबारा पुरानी सतह पर आ सकती है। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह ईस्ट लंदन में भी लॉकडाउन की पाबंदी ख़त्म कर दी गई। तमाम बड़े स्टोर्स ने अशिया पर सेल लगा। लोगों की कसीर तादाद ने खरीदारी करने के लिए मार्केट का रुख किया। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। 23 मार्च से बरतानिया में लॉकडाउन के बाद आज लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। तमाम जरूरियात ज़िंदगी और तमाम ब्रांड्स ने अपने स्टोर्स पर सेल लगाई, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश रहा। हुकूमती अहकामात को मद्देनजर रखते हुए तमाम दुकानों पर SOPs और समाजी फासले का ख्याल रखा गया। इस मौके पर लोगों का कहना था कि तमाम दुकानों का खुलना इंतहाई खुशाइंद है। लोग जो गुज़श्ता 3 महीनों से अपने अपने घरों में कैद थे, वो भी अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेने के लिए मार्केट का रुख कर रहे हैं। बरतानी गवर्नमेंट की इजाज़त के बाद तमाम दुकानों को खोल दिया गया है, ख़ासतौर पर मशरिकी लंदन का इलाका जो ईस्ट लंदन का इलाका है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम कम्युनिटीज़ से कि सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए शॉपिंग को आप जारी रखें और मुकम्मल जो भी आपकी जो असेंशियल और अनअसेंशियल जो चीज़ें हैं वो आप बाज़ार में निकल कर ख़रीद सकते हैं। स्टिल जो है आवाम को ये गाइडेंस दी गई है कि 2 मीटर डिस्टेंस पे रहें, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं और हम मीन्स के पूरी उम्मीद है कि शायद गवर्नमेंट यहाँ 2 मीटर डिस्टेंस को 1 मीटर पे शिफ्ट करेगी, लेकिन आवाम को फिर भी यहाँ हिदायत दी जा रही है कि वो सेफ डिस्टेंस पे रहें और अपने हैंड सैनिटाइज़र को बार बार यूज़ करें। तमाम बड़े ब्रांड्स ने अपने स्टॉक के ऊपर सेल लगाई, जिससे लोगों की कसीर तादाद ने डिस्काउंट से फ़ायदा उठाया। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। बरतानिया में लॉकडाउन में नरमी हुई तो सड़कें, बाजार और पार्क्स में आवाम का हुजूम उमड़ आया। बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने पार्किंग चार्जेस भी आज से बहाल कर दिए। हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी ने एक पार्क का विजिट किया है, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कैनन हिल पार्क में मौजूद हूँ और आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ लॉकडाउन का आज नरमी का पहला रोज़ है और आपने देखा होगा कि पार्क्स में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ टोरियों की शक्ल में
लोग बैठे हुए हैं, अमल कर रहे हैं अपनी गाइडलाइन पर, लेकिन मैंने देखा है कि कहीं भी मास्क और ग्लव्स वगैरह या अफास्ती जो तदाबीर हैं वो नहीं अपनाई गई, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये बीमारी ख़त्म हो गई है। एक जगह आपने ये भी देखा होगा कि मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ के लोगों ने ढोल बजाकर और साज बजाकर नरमी को वेलकम कहा और इस मौके पर खुशी का इज़हार किया, जैसे ऐसे महसूस हो रहा था कि ये कैदियों को रिहाई मिल गई है और वो आज़ाद हो गए हैं और आज़ादी से घूम रहे हैं यहाँ। अब बच्चों की खुशी भी देखी होगी आपने, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर ज़्यादातर मुश्किल होता है कि बच्चों को रोक कर रखें क्योंकि स्कूल भी बंद हैं, और इस दौरान आपने ये भी देखा होगा कि जब बच्चे पार्क में आए हैं तो पार्क में एक नई खुशी उनके लिए ज़ाहिर हुई है। खुदा न खास्ता दूसरी लहर आ जाती है और ये सिचुएशन है कि लोग किसी किस्म की एहतियात नहीं कर रहे, तो अगर दूसरी लहर आ जाती है तो इसमें काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। और ये खुशाइंद बात है कि मौसम खुशगवार है और खुशगवार मौसम में अगर बीमारी कम हो जाती है तो लोगों को मौका मिलेगा कि इस मौसम को एंजॉय कर सकें और ये अपने रिश्तेदारों से मिल सकें और एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, क्योंकि जब तक ये लॉकडाउन था और लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि अपने शहर में अपने सिटी में लोग रह कर अगर पार्क में आते थे या कहीं जाते थे किसी के यहाँ जाना या खुशी के मौके पर किसी से मिलना या कोई फौतगी आ जाती है तो किसी के घर जाकर अफसोस करना बहुत मुश्किल था। तो अब नरमी हो गई और नरमी के बायस इन चीज़ों की जो कैद थी उससे आज़ादी मिल गई है और लोग आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। अब कौन से बिज़नेस किस तरह खोले जाएंगे ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, और जिस तरीके से आगे चलने में मुश्किलात पेश नहीं आती वहाँ तक गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि वो बिज़नेस भी खोलें और लोगों को इजाज़त दें कि ताकि वो अपना बिज़नेस करें, इस मुल्क की इकनॉमी को बेहतर करें। काफ़ी हद तक देखा गया है कि जितने भी गवर्नमेंट ने ऐलान किए थे मुख्तलिफ लोगों की सपोर्ट के लिए, बिज़नेस को सपोर्ट के लिए काफ़ी लोगों को मिल चुके हैं, लेकिन वो इस इंतज़ार में है कि हमारे बिज़नेस दोबारा ओपन हो तो हम वो पैसे इन्वेस्टमेंट करके अपने बिज़नेस को बढ़ा सकें और मुल्क की इकनॉमिक सूरत हाल को बेहतर कर सकें। जी नस्ली मुनाफरत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसके खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। कहते हैं कि इस हवाले से जल्द हुकूमती कमीशन तश्कील दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। First of all, we have to acknowledge that when thousands of people march peacefully for Black Lives Matter, you can't ignore that. I, as a leader, as someone in government, I can't ignore the strength of their feeling. And we have to look at discrimination in the education system, in health, in the criminal justice system. We have to look at all ways in which it affects black and minority ethnic groups. And so we're going to have a big effort, which we'll be announcing very shortly, a new cross-governmental commission to look at what is going on for black and minority ethnic groups. वकला की तंजीम इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के अहदेदारों ने लंदन में जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी से मुलाकात की। इस मौके पर सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थीं। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट। इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने ईस्ट लंदन में जीसी लाहौर यूनिवर्सिटी डॉक्टर असगर जैदी से मुलाकात की, जिसमें इंटरनेशनल एसोसिएशन के अहदेदारान के साथ समाजी और सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। इस दौरान सोशल डिस्टेंस और सेहत के तमाम लवाजमात को मलहूज़ खातिर रखा गया। डॉक्टर असगर जैदी ने इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन मैनचेस्टर के सदर अब्दुस्तार राना को आलमी रावियन क्लब का सदर नामजद किया। इस मौके पर शुरका ने कहा, बरतानिया में मुकीम वकला बरादरी पाकिस्तानी तलबा की इंटर्नशिप के लिए तमाम तर सहूलतें फराहम करेगी। जिस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होंगे उस इंडस्ट्री के लिए आप क्या सीख रहे हैं, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या चीज़ जो है वो आप कंट्रीब्यूट करेंगे। जबकि पाकिस्तान में अभी तक एकेडेमिया और इंडस्ट्री के लिंकेजेस बहुत कम हैं, तो ये बड़ा अहम सवाल किया गया कि इस सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने एक नया ऑफिस जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, जिसे हम कहते हैं ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन, ऑफिस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, उसके तहत हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे ड्यूरिंग द स्टडीज़ जो है
वो इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस हों, और फिर दूसरी तरफ से ट्रैफिक जो इंडस्ट्री के लोग भी जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूट करें कि कौन सी स्टडीज़ ऐसी हैं कि जो कि यूज़फुल होंगी। उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है ये जो आलमी रावियन क्लब के हवाले से, इंडिविजुअली तौर पे तो पहले हम कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब एक मरबूत तरीके से जो तलबा और जो एकेडमिक्स पाकिस्तान से यहाँ आना चाहेंगे और यहाँ अपनी तालीम और रिसर्च करना चाहेंगे, उनके लिए हम भरपूर अमदाद और फैसिलिटी और जो सर्विसेज यहाँ पॉसिबल होंगी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने इंटर्नशिप के हवाले से इसके मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बातचीत की, और हम समझते हैं कि इंटर्नशिप जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिकल एप्रिसिएशन ऑफ नॉलेज, वो आज के दौर में बहुत अहम है। वही हमारे नौजवानों को प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ लेके जाएगी। पाकिस्तान के मुतअद्दिद कोर्सेज जो 10 क्लास से लेके मास्टर्स तक हैं, उनमें इंटर्नशिप को इम्प्लीमेंट किया जाए ख़ास टाइम के लिए, 2 वीक्स 3 मंथ्स डिग्री के हवाले से या उस एजुकेशन के लेवल के हवाले से जिस तरह दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो इस पे उन्होंने काफ़ी हमें एक अच्छा जवाब भी दिया, और उस पर अपनी जो एक इंस्टीट्यूशन कायम पाकिस्तान में किया हुआ उस हवाले से भी हमें बताया। वकला रहनुमाओं ने रावियन क्लब के नौ मुंतखब सदर अब्दुस्तार राना को मुबारकबाद पेश करते हुए हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर डॉक्टर असगर जैदी को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। तकरीब में सजाद रबानी, जाहिद भट्टी, अब्दुल्ला मुश्ताक और दीगर भी शरीक हुए। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। और अब आपको बताएं कि यूरोप के बेशतर ममालिक ने सफ़र के लिए सरहदें खोल दी हैं और फ़ज़ाई ऑपरेशन भी बहाल कर दिया है। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम और पोलैंड में सयाहों को खुशामदीद कहने के लिए इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए। यूरोप में कोरोना वायरस का जोर टूट गया, मामूलात जिंदगी बहाल होना शुरू हो गई। फ्रांस भर में जिंदगी दोबारा लौट आई। 2 माह मुकम्मल और 1 माह जुज़वी लॉकडाउन के बाद पीर के रोज हर तरफ जोशो खरोश और चहल पहल नजर आई। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना था, फ्रांसीसी अवाम ने मईशत की परवाह किए बगैर कोरोना वायरस के खिलाफ पहली जंग जीत ली है, ताहम जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। मैक्रोन ने पेरिस समेत मुल्क भर को ग्रीन जोन में बदलने का ऐलान किया। मुल्क में स्टेट अलर्ट का दर्जा कम कर दिया गया। तमाम रेस्टोरेंट्स और कैफे खोल दिए गए हैं, जबकि तालीमी इदारे 22 जून से खुल जाएंगे। ताहम अवामी इज्तिमाआत पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 28 जून को कराने का फैसला किया गया। यूरोपीय यूनियन में अंदरूनी सरहदें खुलना शुरू हो गयी, जिसके बाद कई यूरोपीय ममालिक के शहरी अपने पड़ोसी ममालिक में बिला रुकावट दाखिल हो सकेंगे। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क और यूनान ने अपनी सरहदें खोल दी हैं। इस हवाले से इटली ने पहल करते हुए 3 जून को ही पड़ोसी ममालिक समेत तमाम यूरोपियन सयाहों के लिए सरहदें खोल दी थी। बल्गारिया, क्रोएशिया, हंगरी, लेटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया ने भी पड़ोसी ममालिक के लिए सफरी पाबंदियों में नरमी का आगाज कर दिया। और मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद इंडोनेशिया में भी पुलिस एहलकारों ने कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग के लिए स्मार्ट हेलमेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अगर करना है कोरोना वायरस से बचाओ तो टेक्नोलॉजी के साथ मैदान में आओ। इंडोनेशिया में पुलिस एहलकारों ने कोरोना मुतासिरीन की स्क्रीनिंग के लिए स्मार्ट हेलमेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस हेलमेट में इंफ्रारेड कैमरा और थर्मो स्कैनर नस्ब हैं, जो शहरियों का दर्जा हरारत स्कैन करने और कोरोना वायरस का पता लगाने की सलाहियत रखता है। समाजी फासलों की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा हेलमेट जो 10 मीटर के फासले से जिस्म का दर्जा हरारत बताने की सलाहियत रखता है, मोहलिक वायरस के खिलाफ बेहतरीन हथियार साबित होगा। सऊदी अरब में कौमी एयरलाइन का दफ्तर बंद होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हाथ से टिकट वसूल करना तो दूर की बात, ऑनलाइन टिकट्स मिलना भी मुहाल है। रोजाना सैकड़ों पाकिस्तानी वर्कर्स टिकट्स के वसूल के लिए जलील ख्वार हो रहे हैं। उमैर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब से वतन वापसी पाकिस्तानियों के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं, जिसकी ताबीर टिकट के हसूल से मशरूत है, मगर दारुल हुकूमत रियाज में PIA का दफ्तर बंद पड़ा है। खुद जाकर टिकट खरीदना तो नामुमकिन हो ही चुका था, ऑनलाइन सिस्टम से भी टिकट का हसूल इंतहाई मुश्किल हो चुका। रोजाना सैकड़ों अफराद PIA के दफ्तर के सामने टिकट के लिए खड़े रहते हैं, मगर टिकट सिर्फ PIA के एजेंटों से ही मिल रहे हैं, वो भी मुकर्रर करदा रेट 1800 रियाल के बजाय 3000 रियाल से भी ज्यादा में। PIA के हेड ऑफिस से मैं सामने खड़ा हूँ और 3 दिन से मैं इधर खुद आ रहा हूँ। पहले तो सिपारे की बात हो रही थी, तो सिपारे में 3-4 दिन से तो जलील हो रहे थे। फिर बाद में उन्होंने वेबसाइट पे दिया कि भाई आप हेड ऑफिस में उधर से ले लो। हेड ऑफिस में आया
तो उस दिन तो तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे से खड़े थे। बाद में इन लोगों ने, ये हेड ऑफिस वालों ने शुरता को बुलाकर सब पाकिस्तानियों को इधर से भगा दिया और जलील करवा के फिर बाहर एक नोटिस लगाया कि आप अपनी एजेंसियों से ले लो। एजेंसियों में जाके बोलते हैं हेड ऑफिस से ले लो, हेड ऑफिस में आते हैं तो एजेंसी से ले लो। हम इस वक्त क्या है कि दफ्तर के साथ खड़ा है और इधर बोलते हैं एजेंसी में टिकट मिलते हैं। तो जब हम एजेंसी जाते हैं, एजेंसी बोलते हैं क्या है कि दफ्तर के साथ टिकट मिलते हैं। बस ऐसे इधर उधर जाते हैं और हमको हम 4 दिन से इधर आते हैं और 4 दिन से एजेंसी जाते हैं और कुछ पता नहीं लगते हैं। हम बिल्कुल जलील हो गया इधर। और आप हमारा ये सारा आदमी खड़ा है, कोई फिक्र करो अल्लाह के वास्ते। हम सपारे पहले टिकट सपारे में मिलता था, सपारे में बोला इधर टिकट बंद हो गया, आप हेड ऑफिस जाओ। वो तमाम अफराद जिनकी नौकरियां खत्म हो चुकी या जिनके विजिट वीज़ों की मियाद खत्म हो रही है, उनकी वतन वापसी नामुमकिन हो गई है। इससे कबल पाकिस्तानी सफारत खाना ऐसे अफराद को टिकट्स मुहैया कर रहा था, मगर PIA की जानिब से टिकटिंग सिस्टम ऑनलाइन करने के बाद टिकट का हसूल मजीद मुश्किल हो चुका। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 4500 से ज़ायद मरीजों की तस्दीक हुई है, जिससे मरीजों की तादाद 1,32,000 से तजावुज़ कर चुकी है। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक कोरोना वायरस के 4,507 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मरीजों की तादाद 1,32,048 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिरा मजीद 39 मरीज़ दम तोड़ गए, जिनकी मजमूई तादाद 1011 हो गई। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक मुमलिकत भर में 43,000 से ज़ायद कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस मौजूद हैं, जबकि 1,897 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सबसे ज़्यादा मरीज़ दारुल हुकूमत रियाज में रिपोर्ट हो रहे हैं। विनिपेग झील में कश्ती डूबने से एक शख्स हलाक जबकि एक लापता है। कश्ती में मुतअद्दिद अफराद सवार थे। कैनेडियन मिलिट्री, कोस्ट गार्ड्स और पैरामेडिक्स की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अफसोसनाक वाकया विनिपेग झील में पेश आया, जहां कश्ती डूबने से एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि एक ताहाल लापता है। स्टार्स एम्बुलेंस की तर्जुमान फातिमा ख्वाजा के मुताबिक कश्ती में मुतअद्दिद अफराद सवार थे। कैनेडियन मिलिट्री, कोस्ट गार्ड और पैरामेडिक्स की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले अफराद के अगवा के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमती सतह पर मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है ताकि एजेंट माफिया के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जा सके और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को तुर्की आने से रोका जाए। तफसीलात आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। बेशतर पाकिस्तानी यूरोप के सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए पाकिस्तान से तुर्की का रुख करते हैं और यहाँ से यूरोप जाने की उम्मीद में एजेंट माफिया के हाथों अपने आप को कैद करवा बैठते हैं। ये एजेंट्स ऐसे अफराद को बेच देते हैं और फिर भारी रकूम हासिल करने के बाद इनको रिहा किया जाता है। खुशी से तो अपना घर बार छोड़ के कोई नहीं होता। मैंने यहाँ पे देखा है लोगों को जिनके साथ, औरतों के साथ शीरख्वार बच्चे भी हैं, उनमें नौजवान लड़के लड़कियां भी हैं। ज़ाहिर है हर कोई एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपना घर छोड़ के आते हैं। किसी को शौक़ नहीं होता कि अपनी ज़िंदगी खतरे में डालें, अपने बच्चों की ज़िंदगी खतरे में डालें और एक ऐसे मुल्क में आप चले जाएं जहाँ पे आप किसी को जानते नहीं हैं, आपको ज़बान नहीं आती, आपके वहाँ पर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए ऐसा होता क्यों है, और दूसरी बात ये कि ये कौन स्मगलर्स हैं और क्या हमारी हुकूमत इसके बारे में कभी कोई इक़दाम नहीं कर सकती। कुछ माफियाज हैं जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तानी को, गरीब पाकिस्तानी को यहाँ लेके आते हैं, फिर झांसा देते हैं आगे यूरोप लेके जाने का गैर कानूनी तरीके से, जिसमें बाज़ दफ़ा उन्हें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अगवा कर लिया जाता है, तावान वसूल किया जाता है। ये एक बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए। हमें सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान के लोगों को एक मैसेज दूंगा, किसी भी गैर कानूनी तरीके से अपने प्यारों को, अपने बच्चों को किसी मुल्क भेजने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि जो भी किसी और मुल्क में जा रहा है, अगर वो सयाहत की गर्ज से जा रहा है या फिर वो हिजरत की गर्ज से जा रहा है, वो कानूनी तरीके को अडॉप्ट करें। इल्लीगल तौर पर लोग यहाँ पे काफ़ी आते हैं पाकिस्तान से और यहाँ पे काफ़ी इन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे लोग यहाँ से दूसरे कंट्री जाने की कोशिश करते हैं, ग्रीस जाते हैं, यहाँ पे भारी भारी पैसे देना पड़ता है, इलीगल तौर पे इन्हें यहाँ पे रहना पड़ता है। फिर दूसरे कंट्री भी जाते हैं, वहाँ पे भी इलीगल तौर पे वो रहते हैं। खुदारा मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तानियों से कि प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे से वो यहाँ पे आए। यहाँ से यानी कि किसी भी कंट्री जाना हो तो प्रॉपर वे से जाया करें, पाकिस्तान का नाम मत खराब करें। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर तुर्की के शहर इस्तांबुल में इलीगल इमिग्रेंट्स जो यूरोप जाने के सुहाने ख्वाब देखकर यहाँ आते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ एजेंट के हाथों ब्लैकमेल होकर भारी रकम में तवान भरते हैं।
हुकूमती सतह पर ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि एजेंट माफिया का खात्मा किया जा सके और इलीगल इमिग्रेंट्स का रास्ता रोका जाए। आतिफ बट 92 न्यूज़ तुर्की। इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें हम जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।